Hello viewers, welcome to the lecture number 1 of Transportation Engineering 1. In this lecture we are going to discuss these topics related to history of road development, Nagpur Road Plan, Bombay Road Plan and Third Road Plan. These all are the 20 road years plans. Also we will discover some patterns in the road development. So we will start with the historical development of roads in India. Here we know that transportation contribute in the economy, industrial and social development of any country. So these points I already highlight in the sentence because every person inside the country needs food, clothing, industry product and medicine, and they generate this type of uh, things, and these things needs transport from one place to another place at any stage during the production and distribution. If the transportation system is very adequate so that the production meet to the supplier, it means the person inside the country. Let's explain with this example. If the transportation facility is high, transportation facility of a country is high, it means there is a adequate movement between demand and supply. Okay, so if industry, the product which is generated by industry easily meet to the supplier or the distributor means the person inside the country will benefited with the industry product more, and hence they will create activity effectively. So due to this reason we can say that for development of any area we need a adequate transportation system. Okay, so in this paragraph we are covering the importance of transportation system for any country. Please go through this paragraph. I already highlight the good points for your note making. Next we will convert our road development plan into some fraction of time. That this is the time where the Jesus Christ was death. Before that we have before Christ time, and we convert this into 12th century. After that we have empire in the India like Mughal Empire. So we convert after the 12th century up to 18th century, which is the period of Mughal Empire. And after the 18th century we have a period of British India, and 1947 we have a modern India. So this is the zones in which we study the development of road or the transportation system in our country, and a separate lecture will be covered for the world development of transportation. So I will take up to 12th century as a first zone. After that we have a Mughal Empire, which is a second zone, then a British India, that is a third one, and the fourth one is still continue, which is modern India. So
These are the plan for study of road development. In ancient roads, we have some evidence about the roads in Mohenjo-daro and Harappa dynasty, and we can see this roads, which gives the idea that at that time the people are aware about the road construction. So this is the basically about the Mohenjo-daro and Harappa dynasty knows that how to build roads. Okay, after that we have some emperor like Ashok who improved these roads according to their conditions. The major changes in India were seen during the period of Mughal emperor. In this we have seen that the Mughal empire comes from, let's take the diagram. This is a roughly Indian diagram like this. So I choose this is a north, this is south, and the Mughal emperor came from the Sindh region. So they came from the north west region toward the northeast region, or you can say they goes across the Ganges plain. Okay, so this is the plain of Ganges, and they move toward this plain because the soil near to the Ganga plain basin was very fertile. Hence they built the roads near to the Ganges plains. So this evidence are still in our country of the Mughal periods where they built the roads. After that we have a British rule, and the British rule is very popular for their industrial revolution. So they take raw material from India, and for collecting those raw material from India they needs a good transportation facility. That's why they introduce railway system in our country. Also they correct the existing condition of that time in which the road are very deteriorate. Okay, so the governor general Lord Dalhousie formed PWD, which is exist today also, which is only special for the road construction in that period. And the construction of grand truck roads can be seen in modern India also. The existing of grand truck road is still there. So this is the basic of British rule, where they are very good about the road construction for collection of raw material. After the 12th century, after the British rule, we became independent India, and the independent India is came under 20th century, and the modern construction of road can be seen from this paragraph, in which we have different formation of road like waterbound macadam, surface we use, and pavement we provide pavement. Okay, so pavement means the layer which is treated with some superior material. Okay, the top layer of road is treated with superior material is known as pavement. Okay, let me take this as pavement. You have to pave top layer of roads. Before that we have waterbound macadam. Waterbound macadam means you are providing is ground, suppose this is a ground level, okay, and you are building a road over this. So how you will provide? You will provide boulders or
gravels like this, and between this gravels you will provide some fine soil. Okay, so between these you will provide some fine soil. Fine soil means near to the clay, because clay have a binding property. Okay, and this binding property is used to bind these coarse aggregate. So mixture of clay and water gives a binding property, so that's why we call the surface as a water bound macadam. Okay, macadam is a scientist name which give the idea of layer formation in the pavement engineering. Today I am just showing you the small version of the road constructions, but we will study this later, when, because macadam is a foreigner, so we will know about more about macadam when we go to the road construction in world. So this is the personality of Mr. Jaker, who formed a committee known as Jaker Committee, and he gives some postulate about the road construction in India. And according to this committee, we have 4 postulates, and these 4 postulates are taken by the government very strictly. As the first one, he said that road should be a national interest. Road should be a national interest. Okay, the second one, he say that there must be a research board for road construction and road development. Okay, the third, he say that a semi-government organization must be have to the road construction. Okay, this is research board for road construction. This is for only road construction. जो काम रोड बनाने में होते हैं उनके लिए एक स्वयं गवर्नमेंट होना चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, और ये रिसर्च बोर्ड ये पता करेगा कि विच रोड इज गुड फॉर द कंट्री. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग है. एंड द फोर्थ वन, ही से दैट देयर मस्ट बी ए टैक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूजर फॉर द रोड डेवलपमेंट. तो ये टैक्स जो लिया गया था उस टाइम पे, ये पेट्रोल पे लिया गया था. ठीक है, तो ये जो 4 पोस्टुलेट हुए हैं, यही 4 पोस्टुलेट गवर्नमेंट ने आगे चल के एक प्रॉपर प्लान के फॉर्म में लाए. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल रोड फंड. ठीक है, ये सेंट्रल रोड फंड जो है ये जैकर कमेटी का 4th पोस्टुलेट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दे नीड टैक्सेशन, they need to collect tax for the road construction. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे पोस्टुलेट जो आए थे वो 28 में आए थे और ये लागू हुए थे 29 में हुए थे. तो फ्रॉम 1st March 1929 this central road fund has been taken by the government. उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लिया, और अकॉर्डिंग टू दिस दे लीव एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक दिस, extra charges of 2.64 paisa per liter of petrol to build the road development. Okay, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ था, इससे 20% एनुअल रेवेन्यू मिलने लग गया था रोड कंस्ट्रक्शन के लिए. तो दिस इज द फर्स्ट, आपको ये याद रखना है. सेंट्रल रोड फंड कब इंट्रोड्यूस किया गया? इंट्रोड्यूस किया 28 में, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट हुआ 29 में. तो ये याद रखना है. इसके अलावा इस सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को देखने के लिए, और उसके लिए इंडियन रोड कांग्रेस बनाया गया IRC, विच इज फॉर्म इन 1934. ठीक है, और ये इसके रिकमेंडेशन पर, IRC के रिकमेंडेशन पे
इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन के काम किए गए, ठीक है, क्योंकि आईआरसी के पास टेक्निकल नॉलेज लाइक दिस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि हमारे पास उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने इसीलिए एक कांग्रेस बनाई जिसमें हमने टेक्निकल नॉलेज को शेयर किया, ठीक है, आइडियाज़ को यहाँ पे क्या, यही प्लानिंग करती थी इंडिया में, कंस्ट्रक्शन फेजेस को देखती थी और मेंटेनेंस ऑफ रोड को भी ध्यान देती थी। तो इस वजह से इस कांग्रेस के मतलब एक कमिटी है एक तरीके से जिसके पास ये सारी चीज़ों का नॉलेज है, ठीक है। तो ये इंडियन रोड कांग्रेस इंडिया में कब आई थी, 1934 में, और ये किस लिए आया, ताकि ये एक टेक्निकल एक्सपीरियंस ले सके अबाउट द रोड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मेंटेनेंस वर्क, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब देखिए 3 पोस्टुलेट तो पूरे हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 चीज़ें जो थी जैकर कमेटी की वो बोली थी, उनमें से सेंट्रल रोड फंड आईआरसी आ गया, ठीक है, और जो फर्स्ट वाला था वो, क्योंकि जब अब इंडियन बना रहे हो, इंडियन रोड कांग्रेस बना रहे तो फर्स्ट वन तो ऑलरेडी टेकन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो सेकंड वाला है रिसर्च बोर्ड, ये बना आपका CRRI, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो सेकंड पोस्टुलेट था जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया था, तो वो ये है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये गवर्नमेंट ने सबसे लेट में बनाया 1950, तो ये बना 1950 में, जहाँ पे रिसर्च वर्क रिलेटेड टू रोड कंस्ट्रक्शन जो होता था वो यहाँ पे शेयर किया जाता था, ठीक है। बिफोर दिस CRRI इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ने रोड्स को नेशनल इंटरेस्ट में लेना शुरू कर दिया था। तो नेशनल इंटरेस्ट में लेने के लिए मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब उसको रोड कंस्ट्रक्शन को एक अलग से प्लान ला रही थी, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द फर्स्ट 20 years रोड प्लान। गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया 20 years रोड प्लान में। जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नागपुर में हुई थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस एंड प्लान, विच इज known as first 20 years road plan, okay। अब कॉन्फ्रेंसेस ने क्या किया, कॉन्फ्रेंसेस ने सम टारगेट आर सेट्स कि हमें 20 इयर्स में ये अचीव करना है इंडिया में, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1943 में हुई थी, और यहाँ ख़त्म कब होना था इसने रोड कंस्ट्रक्शन के वर्क ने, 1963 में होना था। तो सपोज 1943 में there must be some target set by the people of government as well as people of public representative inside the Nagpur Road Conference, okay। So these are the points which is taken by the conference। अब ये points achieve कब तक करने थे, 20 years के अंदर करने थे, यानी कि ये complete होने थे 1963 तक complete होने थे, बट ये जो टारगेट्स थे ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गए थे। तो इसीलिए नागपुर रोड प्लान जो 20 ईयर प्लान था ये कन्वर्ट हो गया 1943 टू 1961, ओके। आफ्टर 1961 वी हैव अनदर रोड प्लान, तो वो भी क्या हुआ 1961 से चला, 20 ईयर करेंगे तो 1981 तक चलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज अवर सेकेंड 20 ईयर प्लान विच इज हेल्ड एट लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ में सेकंड 20 इयर्स प्लान्स में हमें डिसीजन लिए गए। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि नागपुर रोड प्लान में क्या टारगेट रखा था, टारगेट ये रखा गया था कि 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सड़क होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट था। अब इसको समझने के लिए मैं एक समझाता हूँ आपको इसका कैसे मतलब है इसका। सपोज दिस इज योर एरिया, ठीक है, तो एरिया है, ठीक है, इसका एरिया आपका अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इस 100 किलोमीटर स्क्वायर में आपके पास रोड कितनी होनी चाहिए, रोड की जो होनी चाहिए वो 16 किलोमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 16 किलोमीटर की रोड है ये हमारा टारगेट था। तो उस वक्त तक हमारे पास इतने किलोमीटर की रोड नहीं थी, इसलिए हमने टारगेट रखा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में जो ये 16 किलोमीटर रोड है, एक्चुअल में ये रोड प्लस रेलवे लेंथ, रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये 16 किलोमीटर मुझे ड्रॉ करना है,
लेकिन इसमें से मेरे पास सपोज 16 किलोमीटर मुझे ड्रॉ करना है और मेरे पास यहाँ इस एरिया में ऑलरेडी इतना ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ठीक है, और मेरे पास यहाँ से यहाँ तक इतनी रोड है। तो मुझे कितनी रोड और बनानी पड़ी, मुझे यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक रोड और कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी। कितने साल में कंस्ट्रक्ट करना पड़ा मुझे, ये 20 ईयर्स में करा, ठीक है, समझ में बात आई। तो इतना मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। अब ये जो 20 ईयर्स में मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ये चाहे रोड हो या रेलवे हो, ये कुछ भी, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसी तरीके से हमने ये 100 किलोमीटर को कन्वर्ट किया किसमें, कंट्री के एरिया में। तो इस तरीके से हमने टारगेट दिए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी गिव द टारगेट इन द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ नागपुर रोड प्लान, ठीक है। बट जब सेकंड टारगेट आया लखनऊ वाला, तो उसमें हमने क्या किया, ये 16 की जगह क्या कन्वर्ट करा हमने, इसको 32 किलोमीटर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि 32 किलोमीटर की रोड होगी आपकी पर 100 किलोमीटर स्क्वायर पे। और इसमें आपका रेलवे इंक्लूड नहीं था, इसमें आपका रेलवे ट्रैक नॉट इंक्लूडेड, वो आप अलग से था, ठीक है। तो यहाँ पे प्योरली 32 किलोमीटर रोड्स थी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान एंड सेकंड 20 year road plan. Okay, then I already told about the Central Road Research Institute, तो ये तो आपका क्लियर हो चुका है। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलावा वी हैव नेशनल हाईवे एक्ट which is prior to our country and it is introduced in 1956. अब इसमें हाईवे एक्ट में क्या होता है, नेशनल हाईवे एक्ट में कुछ फीचर्स थे which are covered here to declare certain selected highway as national highway, ठीक है। अभी मैं आपको जो प्लान्स है उसको और अच्छे से समझाऊंगा। तो हमारे क्लासिफिकेशंस करे गए थे नागपुर में, नागपुर रोड प्लान में हमने क्लासिफिकेशन कर दिए सड़क के। तो उसमें हमने क्या करा, उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करे नागपुर वाले में। तो हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया था नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन हेल्ड इन नागपुर रोड प्लान, ओके। और फिर 1956 में, क्योंकि ये देखिए 1956 क्या है, 1961 से पहले का है, तो उसमें ही हम क्या लिया थे, नेशनल हाईवे को बनाना शुरू कर दिया था, ओके। तो ये जो नेशनल हाईवे था, द रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेशनल हाईवे एक्ट में क्या लिया है कि नेशनल हाईवे जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अब जो आपका देखा होगा आप लोगों ने स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे MDR, ODR, VDR, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वी नो दैट इंडिया इज ए यूनियन, यहाँ पे दो तरीके की सरकार चलती है, स्टेट गवर्नमेंट चलती है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। तो हमारे पास लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट होती है जहाँ पे स्टेट के लिए जो काम होते हैं। फिर सेंट्रल लिस्ट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम होता है, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये एक्ट इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमें क्या करना पड़ा, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़े। तो दिस नेशनल हाईवे एक्ट इसीलिए लाया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रोड्स हैं उनमें से जो नेशनल हाईवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए, ऑब्वियसली। अब देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि व्हाट इज नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे वो होती है जो किसी दो स्टेट की कैपिटल के बीच होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात थी, सपोज यहाँ पे एक स्टेट है, वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी रूल कर रही है और यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी रूल कर रही है। तो अगर आप स्टेट हाईवे बनाते तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी के साथ दिक्कत हो रही थी, ठीक है, और शायद बन भी नहीं पाता क्योंकि नेशनल हाईवे क्या होते हैं जो कैपिटल के बीच होती हैं, दो स्टेट की कैपिटल के बीच होती है, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल हाईवे को एक्ट के थ्रू हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ले आए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। टू एंटर इनटू एनी लैंड
फॉर कैरिंग आउट सर्विस। तो इस एक्ट के थ्रू अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई, वो किसी भी स्टेट में जाके नेशनल हाईवे के लिए सर्विस कंडक्ट कर सकता है। टू एक्वायर लैंड एंड टेक प्रोसेसन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसलिए करी गई ताकि लैंड एक्विजिशन हो सके। अदरवाइज लैंड जो है, लैंड एक्विजिशन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, क्या पता एग्रीकल्चर लैंड हो, इंडस्ट्रियल लैंड हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो उसमें स्टेट की पावर ज़्यादा रहती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें नेशनल हाईवे एक्ट लाना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके पोस्टुलेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्यों लाते हैं हम, और इसके ईयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 20 रोड ईयर प्लान, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ हल्का हल्का ब्रीफली। ये क्या था, 32 किलोमीटर का जो है टारगेट रखा गया था पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, रोड को इंक्लूड किया गया, रेलवेज को अलग से रखा गया। ठीक है, और ये हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका बॉम्बे में हुआ था, लखनऊ में नहीं, लखनऊ में आपका 3rd हुआ था। ठीक है, लेट मी चेक। यस, नागपुर महाराष्ट्र, फिर बॉम्बे, देन लखनऊ। लखनऊ वाज द लास्ट वन। ठीक है, तो करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने लखनऊ पहले बोला होगा। लखनऊ 3rd के लिए है, 2nd के लिए बॉम्बे है, एंड 1st जो है आपका नागपुर है। तो देखिए इसमें क्या आने लग गए थे, फिर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर इसमें आने लग गए थे। ठीक है, जो कि कब हुआ, 1959 में जब मीटिंग हुई वो हुआ। लेकिन इसमें टारगेट हमने कब का रखा, टारगेट हमने इसके लिए बनाया था। ठीक है, 61 मैंने बता दिया, 61 क्यों, क्योंकि 63 में 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे हमने ये टारगेट सेट कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। उसके अलावा जो 3rd रोड प्लान हुआ वो 1981 से 2001 तक हुआ, और ये हमारा क्या था, लखनऊ में हुआ था, Feb 85 में लखनऊ में हुआ था। ये रिलीज हुआ डॉक्यूमेंट, और इसमें हमारा जो डेंसिटी थी रोड की, वो हमने, जो हमारी डेंसिटी थी वो हमने कितनी थी, हमारी 32 थी। कहाँ पे, बॉम्बे के अकॉर्डिंग, बॉम्बे के अकॉर्डिंग हमारी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर पे थी डेंसिटी। लेकिन हमने ये देखा कि 1981 के एंड स्टार्टिंग में जो रिजल्ट था वो इंक्रीज हो गया था, और वो हो गया था 46 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर हो गया था। तो हमने इसका टारगेट क्या करा, इंक्रीज किया। हम इसको 72 करना चाहते थे, पर 72 से हमने इस टारगेट को इंक्रीज करा, और ये हमारा हो गया 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एट द एंड ऑफ 2001। एंड 2001 के बाद हमने जो डेवलपमेंट किया है वो अर्बन में किया है, नहीं सॉरी, अर्बन तक तो हमारे हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया, रूरल एरिया में डेवलपमेंट किया, जिसमें हम PMGSY पढ़ते हैं। तो 2001 के बाद हमारा जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अभी भी स्टिल गोइंग ऑन। ये इसका जो टाइम पीरियड था 2000 से स्टार्ट होकर 2021 तक था। तो ये PMGSY हमारी योजना चली है। इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इसमें 500% जो माउंटेन्स में है उनका कोई भी विलेज है उसको कनेक्टिविटी के अंदर लाना है। ठीक है, और प्लेन में ये डेटा जो है 1000% के जो विलेज है उसको हमें कनेक्टिविटी के अंदर लाना है। ठीक है, और ये कैसी सड़कें होंगी, ऑल वेदर रोड्स होंगी, ऑल वेदर रोड्स जो साल भर चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसमें दिया गया है PMGSY में। तो ये आपने एक तरीके से रोड प्लान्स के बारे में समझ लिया है, फर्स्ट 20 ईयर्स, सेकंड 20 ईयर एंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के बारे में। इसके अलावा हमारे पास बीच में एक टॉपिक है हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक है, एक तो CRRI है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक आपके पास है हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था, बस आपको ये चीज़ याद रखने की, 1973 में हुआ था, जो प्रॉपर गाइडेंस देती है। ठीक है, रोड रिसर्च एक्टिविटी के रिलेटेड। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें प्रॉपर डायरेक्शन एंड गाइड टुवर्ड द रोड रिसर्च एक्टिविटी इन इंडिया। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड हमारा 1973 में बनाया गया।
Now we move to the another points which is road development during 21st century. अब ये 21st century के अंदर है, इनमें से एक मैंने आपको पीएमजीएसवाई के बारे में बता दिया। इसके अलावा हमारे पास एक डेवलपमेंट हुआ था जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटर का, जिसमें हमने अपनी टॉप गोल्डन क्वाड्रिलेटर का था, ये अटल बिहारी जी के टाइम पे हुआ था, जिसमें हमने अपने इंडिया के टॉप 4 मेजर सिटी, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, फाइनेंशियल कैपिटल हमारी बॉम्बे है, कैपिटल हमारी दिल्ली है, ठीक है, इन सब को हमने कनेक्ट किया था एक दूसरे से। तो ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर है। एक तो ये हमारा मेजर था, एक हमारा पीएमजीएसवाई है, ठीक है। और इसके अलावा फिर अभी हमारे पास क्या है, रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान विजन 25 चल रहा है और रोड डेवलपमेंट प्लान विजन 21 चल रहा है, ठीक है। ये 2021 के बाद के रोड्स प्लान्स हैं। तो ये हमारे आज का जो टॉपिक था वो ये रिलेटेड है, बस एक आइडिया देना चाहता था कि इंडिया में कौन कौन से रोड डेवलपमेंट प्लान हुए पहले और कौन कौन से हो रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ब्रिटिश एम्पायर में नहीं जाना, वो एक हिस्ट्री के फॉर्म में देखना। जो इम्पोर्टेंस है जो मॉडर्न इंडिया में है, हम मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जयकर कमेटी है। जयकर कमेटी के 4 पोस्टुलेट है। रोड मस्ट बी ए नेशनल ऑफ इंटरेस्ट, तो इसीलिए इसमें हमें क्या करना पड़ा, 20 ईयर्स रोड प्लान्स इंक्लूड करने पड़े। रिसर्च बोर्ड होना चाहिए जो हमारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI है, ठीक है। ये हमारा कब बना था, ये आपको देखना पड़ेगा, ये हमारा 50 में बना था, ठीक है। एंड 56 में हमारे पास ये हमारा 1950 में बना था। फिर हमारे पास एक थी IRC, ठीक है। एंड IRC हमारा 1934। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल रोड फंड, ओके। सेंट्रल रोड फंड बना था 4th पोस्टुलेट, ये हमारा 1928 में बना था, बट इट विल अप्लाई ऑन 1929 में। और ये सारे पोस्टुलेट जो जयकर कमेटी ने दिए हैं ये भी 1928 में दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल हाईवे एक्ट है विच इज़ 1956 में है। इसके अलावा और हमें जो याद रखना है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 and highway research board 1973. So these are the terms which you have to remember always whenever you read this subject, okay। फिर उसके बाद हमारे 20th सेंचुरी में जो मॉडर्न है वो हमारी क्वाड्रिलेटर है, विजन 2021 है, रूरल डेवलपमेंट 2025, ओके। तो ये तो तभी इम्पॉर्टेंट होंगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारी PMGSY, ठीक है, ये हमारा 2000 से 2021 तक, तो ये अभी आपका करंटली फिनिश हुआ है और कई जगह पे इसके काम आप देख सकते हो, अपने गांव में ये काम इसके चल रहे हैं। तो दिस इज द अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 in which we go through the basic concept of road plans and the history of road development in the scenario of India. In the next lecture we will go to the different road construction development program in the scenario of world, and from there we understand what are the different construction mechanism of road development. So thank you, have a nice day.